الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمثیلات قرآنی کا مطالعہ میرے اور آپ کے ذہنوں کو کھولنے، اس کے اندر شعوری احساسات کو پیدا کرنے، اس کے اندر بہتر عقل کی صحت عطا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سامعین کرام، مقام موعظت و نصیحت میں امثال کا ذکر مخاطب کے لیے نہایت مؤثر اور دل نشین طرز کا کلام ہے۔ اسی طرح امور معینہ کو مخاطب کے سامنے پیش اور مشاہدہ اور اس کے قبح و محاسن کو نمایاں کر دینا تمثیلات ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ کسی حقیقت کو تمثیل کے پیرائے میں سمجھانا، اعلیٰ حقائق اور روحانی لطائف کو جب تک تمثیل کا جامہ نہ پہنایا جائے اس وقت تک وہ عام عقل کی گرفت میں نہیں آتی۔ اسی وجہ سے روحانی حقائق کی تعلیم میں اس صنف کلام کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی بہت سے احادیث کریمہ میں اس تمثیلات کا استعمال ہوا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان تمثیلات کا استعمال کیا ہے۔ جو کبھی عام نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ تمثیل کے ذریعے سے گویا اس کا مشاہدہ کروایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ طرز بیان بڑی حکمت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کا طرز تمثیل بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس طرز میں تدبر ہے۔ مطالب قرآن کو سمجھنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اسی کے سلسلے میں علامہ رم قشری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تمثیل کی طرف جانے کا مقصود صرف یہ ہے کہ معنی کو منکشف کیا جائے اور متہم کو شاہد سے قریب بنایا جائے۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا، بے شک قرآن 5 وجوہ پر نازل ہوا ہے: حلال، حرام، محکم، متشابہ اور امثال۔ بس تم لوگ حلال پر عمل کرو، حرام سے پرہیز کرو، محکم کی پیروی کرو، متشابہات پر مشابہ پر ایمان لاؤ اور امثال سے عبرت و نصیحت حاصل کرو۔ سامعین کرام، یہ جو ہے وہ امثال کی اہمیت ہے جو مجھے اور آپ کو اس قرآن مجید کے ذریعے سے امت مسلمہ کے اندر شعوری احساسات کو پیدا کرنے میں ایک اسلوب ہے جو قرآن مجید استعمال کرتا ہے۔ سامعین کرام، قرآن مجید کے صفحات کو جب الٹتے ہیں تو اس میں بے شمار مجھے اور آپ کو تمثیلیں نظر آتی ہیں۔ اس میں آج جہاں ہم چل رہے ہیں اس جو ہے تمام آج کی جو مثالیں ہیں وہ مثالیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایمان اللہ پر لے آتے ہیں، جو ثابت قدم رہتے ہیں اور اللہ پر ایز اے مومن جو ہے حرکت میں آئے ہوتے ہیں اور اپنی ساری تقودوں کے ساتھ منظر عام پر آتے ہیں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کیا بشارتیں دیتا ہے، کیا جو ہے احکامات عطا کرتا ہے اور کس مثالوں کے ذریعے سے ان کی تعریف کرتا ہے۔ آئیے تھوڑا سا جو ہے قرآن کے ان صفحات میں ہم سیر کر کے دیکھتے ہیں۔ جہاں ہم سورہ محمد کا مطالعہ شروع کرتے ہیں وہاں آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین قرآنی ہدایات پر چلنے والے لوگوں کے سلسلے میں یوں ارشاد فرمایا کہ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور صریح ہدایت پر ہو ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے اور اپنے خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین واضح طور پر اس مثال کے ذریعے سے بہترین انداز میں پیرائے میں ڈھال کر بات کرتا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جس نے راہ حق کو ڈھونڈ نکالا ہے، روشنی میں جو ہے وہ نہا چکا ہے، تو ایسا شخص کیا جو ہے ویسا ہو سکتا ہے جو برے عمل کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے غضب کا شکار ہونے والے لوگ ہیں، ان کا اور ان کا دونوں جو ہے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ جو ہے سوال اس میں پوچھا گیا ہے۔ یعنی پیغمبر اور ان کے پیرووں کو جب خدا کی طرف سے ایک صاف اور سیدھا راستہ مل گیا ہے اور پوری بصیرت کی روشنی میں وہ اس مقام کو حاصل کر چکے ہیں، تو اب وہ ان لوگوں کے ساتھ چل سکیں گے جو اپنی پرانی جاہلیت کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، جو اپنی ضلالتوں کو ہدایت اور اپنی بدکاریوں کو خوبی سمجھ رہے ہیں، جو کسی دلیل کی بنا پر نہیں بلکہ محض اپنی خواہشات کی بنا پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اب تو نہ اس دنیا میں ان
दोनों ग्रोहों की जिंदगी में एक जैसी हो सकती है और न आखिरत में इनका अंजाम यकसा हो सकता है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल मुखालिफ सिमतों में रहने वाले लोग हैं। जो लोग अल्लाह के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं उन पर इनामात हैं, उन पर कामयाबियां हैं, उनके लिए तरक्की है और अल्लाह की नजर इनायत है। रह गए वो लोग जो भटक कर गुमराह रास्तों पर चल निकले हैं, वैसे लोगों के लिए अल्लाह की नाराजगी है, उनके लिए अजाब इलाही है, उनके लिए पकड़ है और उनका अंजाम बद जहन्नम की दहकती हुई आग की मानिंद उन्हें अता करने वाला है। तो ये दोनों मुखालिफ सिमतों को एक जगह न दुनिया में जमा किया जा सकता है और ना ही आखिरत में जमा किया जा सकता है। इसी बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन मजीद सूरह हदीद आयत नंबर 16 में बताते हुए यूं इरशाद फरमाता है कि ऐसे लोगों के लिए कि और वो इन लोगों की तरह न हो जाएं जिन्हें पहले किताब दी गई थी, फिर एक लंबी मुद्दत इन पर गुजर गई तो इनके दिल सख्त हो गए और आज इनमें से अक्सर फासिक बने हुए हैं। सामीन इकराम, यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा के उस ग्रोह को मुखातिब करता है जो अल्लाह के दीन पर का यकीन ला चुके हैं और उस पर इस्तकामत के साथ जम चुके हैं और उनकी कैफियत यही है कि वो उनसे जो बद अमल लोग हैं उनसे बिल्कुल हटे हुए मुखालिफ सिमत पर अल्लाह की रज़ा की खातिर चलने वाले लोग हैं। अल्लाह उनसे फरमाता है कि उनकी तरह तुम हो जाओगे जब उनके साथ बैठने लग जाओगे, उनके साथ रहने लग जाओगे, उनके साथ कैसा रवैया इख्तियार करने लग जाओगे तो फिर तुम्हारे दिल भी उन्हीं की तरह सख्त हो जाएंगे। यही बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने हदीस मुबारक में यही बात को दोहराया है कि उन लोगों के दरमियान न जाकर बैठा करो वरना तुम्हारे दिल भी उसी तरह सख्त हो जाएंगे। सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा को तलकीन करता है कि जहां इंसानी जिंदगी के ऐसे गुमराह कुन रास्तों में जो लोग चल रहे हैं उनके साथ जब हमारा रहना सहना जीना वो सब कुछ शुरू हो जाता है तो उसके नतीजे में इंसानी जिंदगियों के जो असरात हैं वो एक दूसरे पर पड़ने लग जाते हैं। उसी के नतीजे में इंसान फिर वैसे का वैसा ही हो जाता है। आज हम अपनी जिंदगियों का जायजा लेकर हिंदुस्तान के सिनेरियो में देखा जाए तो वहाँ हिंदुस्तान के वो बातिल कुव्वतें जो इस वक्त रह रही हैं उनके मुख्तलिफ तर्ज, उनके मुख्तलिफ बिदआत, उनके मुख्तलिफ किस्म के तरीक़ेकार हमने अपने मजहब दीन में उसे जमा कर लिया है और उस तरह के रवैये जो इख्तियार करते हैं ये आयत उन लोगों के लिए कहती है कि उनके साथ जब तुम्हारा रहना बसना रसना बसना सब कुछ उनके साथ रहने लग जाएगा तो तुम्हारे रवैये भी ऐसे हो जाते हैं। इसी वजह से अल्लाह ताला फरमाता है कि और आज इनमें से अक्सर फासिक बने हुए हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग जो फासिक हैं इसकी वजह वही है, एक सबसे बड़ी वजह कि ये लोग उन्हीं के साथ रह बस कर अपने आप को उन्होंने इस तरह रवैया बना लिया है। इसी बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिन और अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक को वाज़े करते हुए कुरान मजीद सूरह क़ाफ आयत नंबर 16 में यूं बयान करता है। अल्लाह ताला फरमाता है हमने इंसान को पैदा किया है, इसके दिल में उभरने वाले वसवसों तक को हम जानते हैं, हम इसकी रगे गर्दन से भी करीब हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो सुनो तो सही, मैं तुम्हारे बहुत ज्यादा करीब हूँ। तुम्हारी दिल की धड़कनों को, तुम्हारे दिल के अंदर उठने वाले वो खदशात को, वो ख्वाहिशात को, वो जज्बात को, हर उमंग को मैं जानता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे रगे गर्दन से भी ज्यादा बहुत करीब हूँ। यानी हमारी कुदरत और हमारे इल्म ने इंसान को अंदर और बाहर से इस तरह घेर लिया है। अल्लाह फरमाता है कि इसकी रगे गर्दन भी इससे इतने करीब नहीं है जितना मेरा इल्म और हमारी कुदरत इससे करीब तर है। इसकी बात सुनने के लिए हमें कहीं से चलकर नहीं आना पड़ता, इसके दिल में आने वाले ख्यालात तक को हम बराह रास्त जानते हैं। इसी तरह अगर इसे हम पकड़ना होगा तो हम कहीं से आकर इसको नहीं पकड़ेंगे, वो जहां भी है हर वक्त हमारी गिरफ्त में है और जब चाहेंगे हम इसे धर लेंगे। ये कहकर उम्मत मुस्लिमा को बताया जा रहा है कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह की कुदरत हर तरफ छाई हुई है और वो जब अगर इंसानों को पकड़ना चाहे, उनकी गलतियों पर उन्हें जकड़ लेना चाहे, वो तुम्हारा उनसे अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह की किबरियाई को समझो, उसकी ताकत को समझो, उस हस्ती के आकाए में अपने आप को सौंप दो। वही तो है जो तुम्हें रगे गर्दन से ज्यादा तुम्हारे करीब तर है और तुम्हारी हर बात को वो जानता है। जब अल्लाह के रास्ते में आगे बढ़ोगे तुम्हारे लिए रास्ता वहां पहुंचाया जाएगा। जिस तरह की सीरत की किताबों को जब हम उलट कर देखते हैं कि गज़वात
बात का मुतालिया मुझे और आपको बताता है, जहां जहां मोमिनीन सख्त हालत में थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें वहां फरिश्तों के जरिए से वहां उनकी माँ को उनको मदद फरमाई, और जहां जहां उनके दिल बेसुकून थे वहां उनको सकीनत अता फरमाई। और अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनीन के लिए हर वक्त मतलब जो है हमातन गोश रहता है, और उनके लिए हमेशा मतलब जो है वो रहमत का फैजान करता है, इसलिए कि वो अल्लाह के रज़ा की खातिर उसी के अहकाम और हिदायत को उनकी ज़िंदगियों में नाफिज करते हुए उसकी ज़मीन में मतलब जो है नाफिज करने के लिए वो सरगर्म अमल रहते हैं। अल्लाह को यही काम तो करवाना है उन बंदों के साथ जो इस दुनिया के अंदर उन्हें तख्लीक किया गया है। सामीन इकराम, इसी बात को इस आयत के ज़रिए से बताया गया कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ, इसका एहसास करो। इसी के लिए हमेशा अपने मतलब जो है नफ्स का हमेशा जायज़ा लिया करो, अपने अतराफ़ का जायज़ा लिया करो, अपने अमाल का जायज़ा लिया करो। इसी में तुम्हारी बेहतरी है और इसी में तुम्हारी आगे बढ़ने वाली कामयाबियाँ मौजूद हैं। ये कह के अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह फतह आयत नंबर 29 में मतलब जो है उन सहाबा कराम का तस्करा करता है। ये ऐसे सहाबा कराम हैं जिन्होंने मतलब जो है इस्लाम को क़ुव्वत बख्शी है। आइए इस आयत का मुतालिया करें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और जो लोग इनके साथी हैं वो कुफ्फार पर सख्त हैं, आपस में रहीम हैं। तुम जब देखो कि इन्हें रुकू और सुजूद और अल्लाह के फजल और इसकी खुशनुदी की तलब में मशगूल पाओगे, सुजूद के असरात इनके चेहरे पर मौजूद हैं जिनसे वो अलग पहचाने जाते हैं। ये है इनकी सिफत तौरात में और इंजील में इनकी मिसालें यूं बयान की गई हैं कि गोया एक खेती है जिसमें पहले कोंपल निकली, फिर इसको तकवीत दी गई, फिर वो गुदराई, फिर अपने तने पर खड़ी हो गई। काश्त करने वालों को वो खुश करती है ताकि कुफ्फार इनके फलने फूलने से जिए। सामीन इकराम, ये आयत करीमा वाज़े तौर पर मतलब जो है बताती है कि वो अपने ईमान की जो क़ुव्वत है वो इन सहाबा कराम की ज़िंदगियों में थी। सहाबा कराम मतलब जो है उनकी मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है कि इनके चेहरे, इनके सजदे और इनका मतलब जो है अंदाज ही मतलब जो है बता देता है कि वो अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों में शुमार हैं। इनका तर्ज ज़िंदगी ये तुम मतलब जो है मुतालिया करके देखो कि वो देखने से ही इनको मालूम हो जाता है। सामीन इकराम, इस मिसाल के ज़रिए से जो बात बताई जा रही है इसका मतलब ये है कि वो अपने ईमान की पुख्तगी, उसूलों की मजबूती, सीरत की ताकत, ईमानी फिरासत की वजह से कुफ्फार के मुकाबले में पत्थर की चट्टान का हुक्म रखते हैं। सहाबा कराम का तर्ज अमल वो मोम की नाक के नहीं है कि इन्हें काफिर जिधर चाहे मोड़ दें, वो नर्म चारा भी नहीं थे कि काफिर इन्हें आसानी के साथ चबा जाएं। इन्हें किसी खौफ से दबाया नहीं जा सकता था, इन्हें किसी तरकीब से खरीदा नहीं जा सकता था। काफिरों में ताकत नहीं थी कि इन्हें इस मकसद अजीम से हटा दें जिनके लिए वो सर धड़ की बाजी लगाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए उठे थे। हमने सीरत की किताबों में सहाबा कराम की सीरत को देखा जो वक्त के रसूल का साथ देने के लिए जब हाथ पर बैत करके जब दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए तो उनकी जिंदगियां बदल गई थी। और उनका हाल ये था कि उनको अंगारों पर लिटाया जाता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको धुएं की धुमकी दी जाती, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी जायदादों को गस्ब कर दिया जाता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और उनके बाल बच्चों को उनसे छीन लिया जाता, तब भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हत्ता कि जब हिजरत के लिए बाहर निकले तो वहां के लोगों ने यहां तक जुल्म ज़्यादती कर दी कि उनके पहने हुए कपड़े तक उनके बदन से उतार दिए कि ये हमारे हैं और यहां इसको छोड़ के जाओ। और सहाबा कराम की जिंदगियों का ये हाल था कि उन्होंने इस दुनिया की हीच मतलब जो है उन तमाम चीजों को उन पीछे छोड़कर उन्होंने कहा कि कपड़े भी मतलब जो है तुम्हारे हैं तो ये लो, मैं मतलब जो है तुम्हें देकर अल्लाह के रास्ते में निकल खड़ा हूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे ही सहाबा कराम के जरिए से इस्लाम को उरूज अता किया और इसी के जरिए से ही इस सहाबा कराम की जिंदगियों के जरिए से ही उन्हें बशारतें अता फरमाई और माशरे के अंदर जो इस्लाम की इस्तेकामत अता कर दी गई वो यही सहाबा कराम की जिंदगियों के जरिए से है। सामीन इकराम, यहाँ इनकी सख्ती का तस्करा किया गया कि ये कोई नरम मतलब जो है नहीं है कि ये मतलब जो है इनको जिधर चाहे उधर मतलब जो है कुफ्फार पर इतने ज्यादा सख्त हैं कि
इनको इधर उधर नहीं किया जा सकता। इसी आयत के अंदर जो बताया गया है, इनकी सख्ती जो कुछ भी है दुश्मनाने दीन के लिए है, अहले ईमान के लिए इनकी नहीं है। इस मिसाल के ज़रिए से कुरान मजीद में आयत में तफसील बताई गई। अहले ईमान के मुकाबले में वो नरम हैं, रहीम और शफीक हैं, हमदर्द गमसार हैं। उसूल मकसद के इत्तेहाद ने इनके अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत और हम रंगी व साजगारी पैदा कर दी है। इसकी मिसाल हमने देखा कि जहाँ मतलब जो है गज़वात में जब वो जंग के लिए मतलब जो है कमर बस्ता होकर तलवारें उन्होंने न्याम से निकाली तो देखा कि सामने किसी का चचा है और वो तलवार किसी के बाप के गले पर रख चुके हैं, बेटे के गले पर रख चुके हैं, अपने रिश्तेदारों के गलों पर रख चुके हैं, मगर इनके दिलों में कोई नरमाहट मौजूद नहीं है। वह हक के खातिर सब कुछ इतनी दरजगी के साथ सख्ती के साथ इसे अपना कर खड़े हो गए हैं। और रह गए ये मामला कि जहां मोमिनीन के सिलसिले में है, हम मतलब जो है मदीने की उस वादी में हम देख चुके हैं जहां पर हिजरत करके लोग आने लगे तो वही अंसार थे जिन्होंने अपने घर बार मतलब जो है खोल दिए, उन्होंने अपने कारोबार खोल दिए, अपना हर कुछ मतलब जो है उन मतलब जो है मुहाजिरीन के लिए पेश कर दिया। इसी के नतीजे ही में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें जन्नत की बशारतें अता फरमाई हैं। इसी की मिसाल यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है कि इनको कोई मामूली मतलब जो है चीज़ न समझो, ये अल्लाह के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करके तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। तो ये मतलब जो है इतने मतलब जो है मजबूत है कि इनको तुम हिला नहीं सकते, इनको मतलब जो है इधर उधर ठेल नहीं सकते, और ना इनको मतलब जो है समझते हो कि ये तुम्हारी बात मान लेंगे, तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक चलेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये अल्लाह के मजबूत तरीन बंदे हैं। सामिन इकराम, यहाँ इसी आयत के अंदर इनकी मिसाल देते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि सुजूद के असरात इनके चेहरों पर मौजूद हैं जिनसे वो अलग ही पहचाने जाते हैं। सामिन इकराम, इससे मुराद पेशानी का वो गट्ठा नहीं है जो आम तौर पर हम समझते हैं कि सिजदा करने के नतीजे में जो पेशानी पे गट्ठा आ जाता है वो गट्ठे का तस्करा अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा है। नहीं, वो गट्ठा नहीं है जो सिजदे करने की वजह से बाज नमाजियों के चेहरे पर पड़ जाता है। बाज इससे मुराद मतलब जो है खुदा तरसी, करीम नफ्सी, शराफत और हुस्न अखलाक के वो असरात मतलब जो है नुमायां होकर इन सहाबा कराम की जिंदगियों में थे जो खुदा के आगे झुकने की वजह से फितरतन आदमी के चेहरे पर नुमायां हो जाते हैं। वैसे असरात इनके चेहरे पर थे जिसका तस्करा इस आयत में सिजदे के असरात के साथ मतलब जो है बात बयान कर रहा है। सिजदा मतलब वो सिजदा नहीं जो नमाज के लिए झुका जाता है, ये सिजदा वो है जो इताअत अल्लाह के हुक्म पर यानी लब्बैक कहते हुए जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म आया उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर उन्होंने अना मुस्लिम की सलाह के साथ अल्लाह के आगे उन्होंने सर तस्लीम खर्म कर दिया। ये उस तरह सिजदे का तस्करा किया जा रहा है। सामिन इकराम, इंसान का चेहरा एक खिली खुली किताब होता है जिसके सफ़ात पर आदमी के नफ्स की कैफियत बआसानी देखी जा सकती हैं। एक मुतकब्बिर इंसान का चेहरा अगर हम देखें और देखें एक मुतवाज़े और जो नरम मिजाज आदमी का चेहरा है ये इससे बिल्कुल अलग होता है। अगर एक बदअखलाक आदमी का चेहरा एक नेक नफ्स और खुश खल्क आदमी के चेहरे से अलग मतलब जो है पहचाना जाता है। मुआशरे के अंदर चल फिर कर देखें तो एक लफंगे और बदकरदार आदमी की सूरत एक शरीफ और पाकवाज आदमी की सूरत में नुमाया फर्क मुझे और आपको नजर आता है। अल्लाह ताला इस आयत के जरिए से इरशाद फरमाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी यानी सहाबा कराम तो ऐसे हैं कि इनको देखते ही आदमी बैक वक्त एक ही नजर में ये मालूम कर सकता है कि ये खैर खल्लाक हैं, क्योंकि खुदा परस्ती का नूर इनके चेहरों पर चमक रहा है। ये वही चीज़ है जिसके मुतल्लिक इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि जब सहाबा कराम की फौजें शाम की सरजमीन में दाखिल हुई तो शाम के ईसाई कहते थे कि मसीह के हवारियों की जो शान हम सुनते थे ये तो इसी शान के लोग हैं। सामिन इकराम, जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारका का जिक्र करते हुए इसी आयत मुबारका में अल्लाह के सहाबा कराम के लिए खुद सियों का लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया है। और ये किताब इस्तिस्ना में मतलब जो है
یہ لفظ آیا ہے سامعین اکرام۔ اس کے سوا اگر مطلب صحابہ کرام کی کوئی صفت تورات میں بیان ہوئی ہے تو وہ اب بھی مطلب جو ہے جو کیونکہ تبدیل ہو چکی ہے اس وجہ سے وہاں سے قصب کر دی گئی ہے۔ یہ تمثیل جو یہاں پہ دی گئی کہ تورات اور انجیل میں ان صحابہ کرام کی مثال مطلب جو ہے بہترین دی گئی تھی، اور وہ مثال کیا تھی کہ ان کی صفات تورات اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے گویا ایک کھیتی ہے جس میں پہلے کونپل نکلی، پھر اس کی تقویت دی گئی، پھر وہ گدرائی، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، کاشت کرنے والوں کو خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے سے جلے۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین اس مثال کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ پہلے مطلب جو ہے بیج مطلب جو ہے وہاں پہ ڈالا گیا، یعنی ایمان کی کیفیت مطلب جو ہے پیدا ہوئی، دائرے اسلام میں داخل ہوئے، پھر اس میں مطلب جو ہے آگے بڑھے، اور اسی کے نتیجے میں پھر وہ مطلب جو ہے چھوٹی سی کونپل کی شکل میں وہ منظر عام پر آئے، پھر اس کے بعد وہ چھوٹا سا پودا بنے، اور اس کے بعد وہ لہلہاتا ہوا تناور درخت بن کر مطلب جو ہے کھڑے ہو گئے۔ یہ مثال ہے ان صحابہ کرام کی جو اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو، وہ مطلب جو ہے لوگ جو اللہ کو پسند ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں راستے میں لگائی ہیں، ویسے لوگوں کی مثال دے کر اس قرآن مجید کی مثال کے ذریعے سے امت مسلمہ کو بتاتا ہے کہ تمہیں ویسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، میرے محبوب بندے ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے خاطر اپنے آپ کو لگانے والے، لبیک کہنے والے، جھک جانے والے، اطاعت کرنے والے، ایسے شعوری احساسات رکھنے والے اگر کوئی لوگ ہیں تو یہ صحابہ کرام ہیں۔ اس مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سامعین اکرام، اگر ہم انجیل وغیرہ کی مطلب جو ہے آیات پر مطلب جو ہے دیکھیں تو وہاں پر بھی مطلب جو ہے مرکز مطلب جو ہے کتاب کے اندر انجیل میں متی میں بھی یہ مطلب جو ہے کوٹیشن دیا گیا ہے صحابہ کرام کے سلسلے میں، یا اس وقت کے حواریین کے سلسلے میں، اور وہ اس طرح مطلب جو ہے کوٹیشن دیتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے اور دن کو جاگے، اور وہ بیج اسی طرح آگے بڑھے کہ وہ نہ جانے زمین آپ سے آپ پھول لاتی ہے، پتی لاتی ہے، پھر بالیاں نکلتے ہیں، پھر بالوں میں تیار دانے، پھر جب اناج پک چکا تو وہ فل فور دران تیز لگاتا ہے تاکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا ہے، وہ رائی کے دانے کے مانند ہے۔ اور جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے، مگر جب بویا گیا تو اگ کر جب سب ترکاریوں سے وہ بڑا ہو جاتا ہے تو ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ ہوا کے پرندے اس کے سائے میں بسیرا کر سکتے ہیں۔ یہ وہ مثال ہے جو اس وقت مطلب جو ہے ان یہود و نصارہ کے ان کتابوں کے اندر مرکز ہو یا استثناء ہو یا تو انجیل ہو، ان کے پاس مطلب جو موجود تھی اس میں مثالیں موجود تھی۔ اللہ رب العالمین بالکل ہو بہو ویسی مثال اس آیت کے ذریعے سے، جہاں مطلب جو ہے سورہ فتح آیت نمبر 29 میں یہ مثال دے کر اللہ کی طرف بڑھنے والے لوگ، اس کو ماننے والے لوگ، اس کے مطابق استقامت اختیار کرنے والے لوگ، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین اس طرح ان کی تعریف کی مثالیں دیتا ہے۔ سامعین اکرام، اسی طرح اہل ایمان اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو جو تلقین کرتا ہے وہ سورہ سب کی آیت نمبر 14 میں مطلب جو ہے یوں بیان کرتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریین کو خطاب کر کے فرمایا تھا، کون ہے اللہ کی طرف کون ہے اللہ کی طرف بلاتے میں میرا مددگار ہو؟ حواریین نے جواب دیا تھا، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے نے انکار کر دیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی اس دشمنوں کے مقابلے کی تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے۔ اللہ رب العالمین اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے اس مطلب جو ہے ماحول کو ہمارے سامنے مثال کے طور پر پیش کرتا ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام اپنا مطلب جو ہے پورا اللہ کے دین کے غلبے کے خاطر کلمت اللہ کا اعلان کرتے ہیں، اور وہاں مطلب جو ہے پوچھتے ہیں کیونکہ اس کے درمیان کہ کون ہے جو میرے ساتھ دیں گے اور اللہ کے احکام کو اس زمین پہ نافذ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں دو گروہ پیدا ہوئے، ایک ہے مطلب جو ہے ساتھ دینے والا جسے حواریین کے نام سے یاد کیا گیا، دوسرا ہے انکار کفر کرنے والے کے لوگ جو منکر حق تھے۔ ایسے دونوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے باقاعدہ طور پہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایمان لانے والوں کی اس دشمنی کے مقابلے میں تائید کی اور ان کو مطلب جو ہے عروج بخشا اور وہی غالب رہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ یہی مثال دیتے ہوئے
उम्मत मुस्लिमा को बताता है कि देखो मुझे ये मतलब जो है लोग पसंद हैं, तुम्हें ऐसा तर्ज अमल ज़िंदगी में पसंद करना चाहिए और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों में ऐसा रवैया इख्तियार करना चाहिए। कुरान मजीद में इन लोगों को अल्लाह का मददगार कहा गया, वो हवारीन थे जो खल्क़ खुदा को दीन की तरफ बुलाने और अल्लाह के दीन को कुफ्र के मुकाबले में गालिब करने की जद्दोजहद करेंगे। ये वही लोग थे जो हवारीन के नाम से कुरान मजीद इनको याद करता है। सामईन इकराम, ज़िंदगी के जिस दायरे में अल्लाह ताला ने इंसान को इरादा व इख्तियार की आज़ादी अता की है, इसी में वो इंसान को कुफ्र या ईमान, बगावत या इताअत में से किसी एक राह के इख्तियार करने पर अपनी खुदाई ताकत से मजबूर नहीं करता कि वो अल्लाह की बंदगी इख्तियार करे, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी बजाय दलाइल के ज़रिए से, नसीहत के ज़रिए से इंसानों को इस बात का ख़ाइल करना चाहता है कि इनकार व नाफरमानी और बगावत की आज़ादी रखने के बावजूद इसके लिए हक वही है और इसकी फलाह व निजात का रास्ता भी यही है कि अपने खालिक की बंदगी और इताअत इख्तियार करे। इसी तरह फरमाइश और नसीहतों से बंदों को राह रास्त पर लाने की तदबीर करे। ये दरअसल अल्लाह का काम है। सामईन इकराम, और जो बंदे इस काम में अल्लाह का साथ दें, इनको अल्लाह अपना रफ़ीक और मददगार करार देता है और ये वो बुलंद मुकाम है जिस पर किसी बंदे की पहुंच हो सकती है। सामईन इकराम, नमाज, रोज़ा और तमाम अक़साम इबादत में से तो इंसान महज बंदा गुलाम हो सकता है, मगर तबलीग दीन का जहाँ तस्करा किया जा रहा है, तबलीग दीन, अक़ामत दीन की जद्दोजहद में बंदे को अल्लाह की रफ़ाक़त और मददगारी का शर्फ हासिल होता है, जो इस दुनिया में रूहानी इर्तिक़ा का सबसे ऊंचा दर्जा है। सामईन इकराम, यही बात का तस्करा करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं कोई ज़बरदस्ती करने वाला नहीं हूँ। जो अपनी दिल की रज़ाइयत के साथ, नीयतों में इखलास लिल्लाहियत के साथ जो आगे बढ़ते हैं और मेरी बात को सुनकर अपना सरे तस्लीम खम कर देते हैं, ऐसे लोगों पर मैं मतलब जो है उन पर नजर इनायत करता हूँ, उनका साथ देता हूँ और उनके उभरने के लिए मौके और ज़राए फराहम करता हूँ। सामईन इकराम, राह रास्त दिखाने के लिए तस्कीर वो तालीम और तफ़हीम तलक़ीन का जो तरीक़ा है, इस तस्कीर तफ़हीम को जो शख्स बरज़ाए रग़बत कबूल कर ले वो मोमिन है। सामईन इकराम, जो अमलन मतियो फरमान बन जाए वो मुस्लिम और क़आनत और आबिद है, और जो खुदा तरसी का रवैया इख्तियार कर ले वो शख्स मुत्तक़ी है, जो नेकियों की तरफ सबक़त करने लगे वो मोहसिन है। और इससे मज़ीद एक कदम आगे बढ़कर जो इस तज़कीर वो तालीम के ज़रिए से बंदगाने खुदा की इस्लाह के लिए और कुफ्र व फ़िस्क की जगह अल्लाह की इताअत का निज़ाम कायम करने के लिए काम करने लगे, इसे अल्लाह ताला खुद अपना मददगार बना देता है और इसे वही मतलब जो है अच्छे अल्फाज के साथ, अच्छी मिसालों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों के सामने वो तफसील बयान करता है। सामईन इकराम, आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नेक बंदों का तस्करा करते हुए फरमाता है कि अल्लाह के रास्ते में ऐसे लोग जो मेरी खातिर मतलब जो है सरे तस्लीम खम करके नेक किरदार लोग होते हैं, वो वैसे लोगों का वस्फ बयान करते हुए फरमाता है कि वो अल्लाह के दीन के खातिर, वो अल्लाह के राह में मतलब जो है कुर्बान करने वाले और अल्लाह के खातिर लड़ने वाले भी होते हैं। इसका तस्करा करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह को तो पसंद है वो लोग जो इसकी राह में इस तरह सब बस्ता होकर लड़ते हैं गोया वो सीसा पिलाई हुई दीवार है। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि इनका मतलब जो है इसमें तीन मतलब जो है सिफात का तस्करा इसमें करता है। एक कि वो खुसूस समझकर अल्लाह के रास्ते में लड़े, किसी ऐसी राह में वो लड़े जो फी सबीलिल्लाह की तारीफ में ना आती हो, वैसी जगह वो मतलब जो है रुक जाए। जो काम भी फी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए न हो, वहाँ पे वो ठिठर कर मतलब जो है खड़े हो जाएं। ये बस मतलब जो है उन मोमिनीन के लिए होता है। और फिर मतलब जो है बताया गया जहाँ अल्लाह के खातिर लड़ने की बात आती है तो उनका ये है कि वो बद निज़ामी और मतलब जो है इम्तिशार में मुब्तला न हो, बल्कि मजबूत तंजीम के साथ वो सब बस्ता होकर लड़ने की जसारत रखने वाले लोग हों, वैसे लोग मोमिन होते हैं। तीसरी वस्फ इसी आयत के जरिए से जो बताई गई वो ये है कि ये दुश्मनान के मुकाबले में इनकी कैफियत सीसा फिलाई हुई दीवार किसी होती है। फिर ये आखिरी सिफत की बजाय खुद अपने अंदर मानी की एक दुनिया रखते हैं। कोई फौज इस वक्त तक मैदान जंग में सीसा फिलाई हुई दीवार के माने खड़ी नहीं हो सकती जब तक कि इसमें हस्बे से यानी इसमें मतलब जो है ये नुकात पैदा ना हो जाए। कौन से नुकात हैं? पहला नुक्ता ये है कि उनके अंदर अकीदे और
और मकसद में कामिल इत्तेफाक होना चाहिए जो इनके सिपाहियों और अफसरों को आपस में उन्हें मुत्तहद रखे। तभी कहीं जाकर वो कोई बड़ा काम कर सकते हैं, तभी कहीं जाकर वो जो है इल्गार कर सकते हैं, तभी कहीं जाकर वो मतलब जो है फौज जो निकली हुई है अल्लाह के दीन के क़याम के खातिर वो मतलब जो है गलबा हासिल करते हैं। दूसरे कि वो खुलूस पर एतमाद हो जो कभी इनके बगैर पैदा नहीं हो सकता कि सब फिल वाक़ा अपने मकसद में मुखलिस और नापाक इग़राज़ से पाक हों, वरना जंग जैसी सख्त आजमाइश किसी का खोट छुपा नहीं रहने देती और एतमाद खत्म हो जाए तो फौज के अफराद एक दूसरे पर भरोसा करने की बजाय उल्टा एक दूसरे पर शक करने लग जाते हैं। सामईन इकराम, दुनिया में बहुत सारी जंगें लड़ी गई, इन जंगों के अंदर हमने देखा जो अल्लाह के दीन के खातिर मतलब जो है जो ये लोग गलबा दीन के खातिर उठकर खड़े हो गए थे वो मतलब जो है मुट्ठी भर मतलब जो है लोग थे, आटे में नमक के बराबर थे, मगर उन्होंने ऐसा धावा बोया और ऐसी मतलब जसारत दिखाई कि वो गलबा उन्होंने हासिल कर लिया। रह गया वो मतलब जो है फौजें जो कुफार की मतलब जो है फौजें थी, उनके अंदर जो हाल था कि वो मतलब जो है अय्याशी के साथ बाहर निकले हुए थे। उनका ये हाल था कि आसाइश से सामान लिए हुए वो मतलब जो है अब तकब्बुर के साथ बाहर निकले हुए थे। वो समझ रहे थे कि हमको ज़ेर करने वाला मतलब कोई नहीं है। उनके पास मतलब जो है सामान मतलब जो है जंग बहुत कुछ मौजूद था, मगर उनका हाल क्या हुआ, उन्हीं के दरमियान फूट पड़ी, उन्हीं के दरमियान शक व शुबात पैदा हो गए, उन्हीं के दरमियान मतलब जो है लोग डर कर मतलब जो है भाग निकले और मतलब जो है वो मगलूब होकर रह गए। ये वो सिफ्त है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन बताता है कि जंग की स्ट्रैटेजी को मतलब जो है कामयाब बनाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वो सब बस्ता होकर लड़ने वाले वो लोग हैं ऐसे जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार हो। इनके अंदर एक वस्फ वो भी पैदा होना चाहिए कि जब वो मतलब जो है गालिब आ सकते हैं कि अखलाक का एक बुलंद मियार जिससे अगर फौज के अफसर और सिपाही नीचे गिर जाएं तो इनके दिलों में न एक दूसरे की मोहब्बत पैदा हो सकती है, न इज्जत, और ना ही वो आपस में मुतसादम होने से बच सकते हैं। सामईन इकराम, अपने मकसद का एक इश्क और इसे हासिल करने का अज़्म पुख्ता जो कभी मतलब जो है पूरी फौज में सरफरोशी व जानबाजी का नाकाबिल तस्कीर जज्बा पैदा कर देगा और वो मैदान जंग में वाकई सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह डट जाएगा। ये तो यहाँ पे जंग का तस्करा किया जा रहा है। दीन की तबलीग के सिलसिले में भी अगर इस मतलब जो है नुक्ते को सामने रखकर देखा जाए, जिनके लिए जिन दिलों के अंदर वहाँ इश्क के वो मकसद के इश्क अगर इनके अंदर बड़ी हद तक पैदा हो जाए तो फिर मतलब जो है उनका ये हाल होता है कि उनके अज़ाइम बुलंदियों को, आसमान की मतलब जो है बुलंदियों को छूने लग जाती हैं और उनको ज़ेर करना किसी के बस की बात नहीं होती। चाहे मतलब जो है कितना ही मतलब जो है कुफ्फार और मुशरिकीन एक जा हो जाएं, उन्हें मतलब जो है नीचा नहीं किया जा सकता। सामईन इकराम, मौजूदा दौर ही के हमने अक़वानुल मुस्लिमीन के उसी मतलब जो है हमने कुतुब शहीद को देखा, फिर हमने ज़ैनुल गज़्ज़ाली को देखा, फिर इसी एशियाई हालात में देखें तो वहाँ हमने मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को देखा कि कुफ्फार और मुशरिकीन और ख़ुद मतलब जो है शैतान नुमा इंसानों ने इनको मतलब जो है ज़ेर करने के लिए कैसी कैसी चालें रची गई और किस तरह से इनको मतलब जो है जुल्म सितम का निशाना बनाया गया, किस तरह से इन्हें फांसी के फंदे पर ले जाया गया। मगर मतलब जो है जहाँ मकसद का इश्क मतलब जो है इंसानों में पैदा हो जाए वहाँ कोई चीज़ मतलब जो है उनके आड़े नहीं आ सकती। अज़ाइम जिसके पुख्ता हों, यकीन जिनका खुदा पर हो, तलातिम खीज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते, इस मिज़दाक में वो खड़े रहते हैं। इसी वजह से यही थी वो बुनियादें जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत एक ज़बरदस्त अक्सरी तंजीम उठी थी जिससे टकरा कर बड़ी बड़ी क़ुव्वतें पाश पाश हो गई थी और सदियाँ तो दुनिया की कोई ताकत इनके सामने न ठहर सकी थी। आज उम्मत मुस्लिमा का जायज़ा लेकर देखा जाए तो उम्मत मुस्लिमा का जो हाल है इस वक्त है वो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर वैसी इस्तकामत मौजूद नहीं है, वैसी सीसा पिलाई हुई दीवार की मानिंद वो मतलब जो है तंजीम मौजूद नहीं है, वो क़यादत मतलब जो है मुसलमानों को मैसर नहीं आ रही है। इसी वजह से ऐसे हालात पेश आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हीं की तरफ इशारा करते हुए मुझे और आपको बताता है। सामईन इकराम, आगे बढ़कर देखें तो वहाँ मतलब जो है सूरे मुल्क आयत नंबर 22 और 23 का मतलब जो है तस्करा है, जहाँ मतलब जो है बड़ी मतलब जो है तफसील के साथ हिदायत याफ्ता और गुमराह लोगों की तरफ बड़ी मतलब जो है तफसील के साथ इसमें गुफ्तगू की गई है। क्या कहा गया है? तर्जुमा कुछ इस तरह है, भला सोचो जो शख्स मुंह अंधे चल रहा हो वो ज्यादा सही राह पाने वाला है या वो जो सर उठाए सीधा मतलब जो है एक हमवार सड़क पर चल रहा हो
इनसे कहो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम सुनने और देखने की ताकतें दी और सोचने समझने वाले दिल दिए, मगर तुम कम ही शुक्र अदा करते हो। सामने इकराम, एक बेहतरीन मिसाल यहाँ पे पेश की गई। इस मिसाल के जरिए से जहनों को खोल दिया गया और मतलब जो है इसमें तफसीली गुफ्तगू इसमें की गई। मिसाल के जरिए से उम्मत मुस्लिमा को दिखा दी गई कि दो मतलब जो है अशखास का तस्करा किया गया। एक है मुंह औंधे मतलब जो है सर झुकाकर चलने वाला शख्स, एक वो शख्स जो सर उठाकर जीता है। सामने इकराम, कभी हमने इस मतलब जो है मिसाल को इस अंदाज में नहीं पढ़ा होगा और ना इस अंदाज में गौर और फिक्र और मुहासिबा किया होगा। आज आइए जरा ठहर कर हम इस मतलब जो है मिसाल को सामने रखकर अपनी जिंदगियों का जायजा लेते हुए उम्मत मुस्लिमा का हाल मतलब जो है जानते हुए इस मतलब जो है इस पर हम मतलब थोड़ी सी मतलब जो है गुफ्तगू कर ले। सामने कराम, यहाँ पहली मतलब आयत के साथ ही यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया गया, भला सोचो तो सही, जो शख्स मुंह उठा औंधे चल रहा है, यानी इसका मतलब क्या है? कहा गया कि जानवरों की तरह मुंह नीचे किए हुए इस डगर पर चल रहा है जिस पर किसी ने इसे डाल दिया है। यानी इंसानों की कैफियत ये बताएगी कि एक ग्रोह ऐसा है जिनकी समझ कुछ नहीं है, अकल कुछ नहीं है, ना वो सोचता है ना ही मतलब जो है वो मतलब जो है गौर व फिक्र करता है, जानवरों की तरह मतलब इसकी जिंदगी हो गई है। और उसका ये हाल है कि वो मतलब जो है चुपचाप सर झुकाए हुए जिस तरह जानवर चलते हैं, गाय भेड़ बकरी चलते हैं, उसी की तरह का इनका तर्ज अमल हो गया है। एक के बाद को जो आगे मतलब जो है मिसाल के जरिए से बताया गया, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ने तो तुम्हें इंसान बनाया था, जानवर नहीं बनाया था। तुम्हारा काम ये नहीं था कि तो जो गुमराही भी दुनिया में फैली हुई हो इसके पीछे आंखें बंद करके चल पड़ो और कुछ न सोचो कि जिस राह पर तुम जा रहे हो वो सही भी है या नहीं है। ये कान तुम्हें इसलिए नहीं दिए गए थे कि जो शख्स तुम्हें सही या गलत का फर्क समझाने की कोशिश करे इसकी बात सुनकर न दो, और जो गलत सलत बातें पहले से तुम्हारे दिमाग में बैठी हुई है इन्हीं पर अड़े रहो। ये आंखें तुम्हें इसलिए तो नहीं दी गई थी कि अंधे बनकर दूसरों की पैरवी करते रहो और खुद अपनी बीनाई से काम लेकर ये न देखो कि जमीन से आसमान तक हर तरफ जो निशानियां फैली हुई हैं वो आया इस तौहीद की शहादत दे रही है जिसे अल्लाह का रसूल पेश कर रहा है। सामिन इकराम, या ये शहादत दे रही है कि सारा निजाम कायनात बेखुदा है या बहुत से खुदा इसको चला रहे हैं। इसी तरह ये दिल ये दिमाग भी तुम्हें इसीलिए नहीं दिया गया है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम सोचने समझने का काम दूसरों के हवाले करके हर उस तरीके की पैरवी करने लगो जो दुनिया में किसी ने जारी कर दिए हैं और अपनी अकल से काम लेकर ये सोचने की कोई जहमत ही गवारा न करो कि वो गलत है या सही है। अल्लाह ने इल्म, अकल और समात और बीनाई की ये नेमतें हक शनासी के लिए दी थी, तुम नाशुक्री कर रहे हो इससे और तुम्हारे काम तो लेते हो मगर बस वही एक काम नहीं लेते जिसके ये इस चीज के लिए ये दी गई है। सामने इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मिसाल के जरिए से इंसानों को दलाइल के साथ उसके दिल को झंझोड़ देना चाहता है, दलाइल के साथ इसके दिमाग पर जो पर्दे पड़े हुए हैं उसको खोल देना चाहता है। अल्लाह की ये आयात ही वो चीज हैं जो इंसान को हकीकत का सही फहम व इदराक बख्शती हैं। ये फहम व इदराक इंसान को हासिल हो जाए तो वो आंखों से ठीक देखता है, कानों से ठीक सुनता है, दिलो दिमाग से ठीक सोचता है और सही फैसले करता है। लेकिन जब वो आयत इलाही को मानने से इनकार कर देता है तो आंखें रखते हुए भी इसे निगाह हक शनास नसीब नहीं होती, कान रखते हुए भी हर कलमा नसीहत के लिए बहरा हो जाता है और दिल और दिमाग की जो नियामतें इसे खुदा ने दी हैं इससे उल्टा सोचता है और एक से एक गलत नतीजा अखज़ करता चला जाता है, यहाँ तक कि इसकी सारी कुव्वतें खुद इसकी अपनी तबाही में सर्फ होने लग जाती हैं। उम्मत मुस्लिमा का आज जायजा लेकर देखें, उम्मत मुस्लिमा इसी तरह तो गुमराह हो रही है, इसी तरह जानवरों की तरह अपना सर नीचे किए हुए चुपचाप मतलब जो है जिस रोह के साथ, जिस बहाव के साथ, जिस मतलब फोर्स के साथ उसे चलाया जा रहा है वो चलती चली जा रही है, ना अकल का इस्तेमाल करती है, न जहनों को खोलती है, न बात को समझने की कोशिश करती है और समझाने की कोशिश कर दिया जाए तो फिर वो हैरान और फुगा मतलब वो बनकर वो आंखें मतलब जो है फतराए हुए अंदाज में वो घूर घूर कर देखकर ऐसे देखती है जैसे उसे कुछ समझ में ही नहीं आया है। सामिन इकराम, सूरे नहल आयत नंबर 78 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अल्लाह तो तुमको तुम्हारी
माओं के पेटों से निकाला, इस हाल में कि तुम कुछ न जानते थे। इसने तुम्हें कान दिए, आंखें दिए, सोचने वाले दिल दिए, इसलिए कि तुम शुक्रगुजार बनो। यानी इस मिसाल के जरिए से अल्लाह ताला फरमाता है कि वो जराए जिससे तुम्हें दुनिया में हर तरह की वाकफियत हासिल हुई और तुम इस लायक हुए कि दुनिया के काम मतलब जो है चला सको। इंसान का बच्चा मतलब जो है उस पर गौर करके देखा जाए तो गोदों में आने वाला ये मासूम सा बच्चा पैदाइश के वक्त जितना बेबस और बेखबर होता है, इतना किसी जानवर का नहीं होता, मगर ये सिर्फ अल्लाह के दिए हुए इल्म, समात, बिनाई और अकल और तफक्कुर ही हैं जिनकी बदौलत तरक्की करके तमाम मौजूदात अराजी पर वो हुक्मरानी के लायक बन जाता है। सामिन इकराम, इसीलिए कि तुम शुक्रगुजार बनो का मतलब जो है फिरका इस्तेमाल किया गया, यानी इस खुदा के शुक्रगुजार जिसने ये बेशबहा मतलब जो है नियामतें तुमको अता फरमाई हैं। इसी ही के नतीजे में तुम मतलब जो है तमाम जानवरों में अशरफुल मखलूक बनकर मतलब जो है उभर कर मंजर आम पर आते हो। इन्हीं नियामतों की इससे बढ़कर नाशुक्री और क्या हो सकती है कि इन कानों से आदमी सब कुछ सुने मगर एक खुदा ही की बात न सुने, इन आंखों से सब कुछ देखे मगर एक खुदा ही की आम आयात न देखे, और इस दिमाग से सब कुछ सोचे मगर एक यही बात न सोचे कि मेरा वो मोहसिन कौन है जिसने इनामात मुझे दिए हैं। इसी बात को मतलब जो है मजीद बढ़ाते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह सजदा की आयत नंबर 7 से लेकर 9 तक की आयत में यूं इरशाद फरमाता है, जो चीज भी इसने बनाई खूब बनाई है, जिसने इंसान की तख्लीक की इब्तिदाई गारे से की, फिर इसकी नस्ल एक ऐसी सत से चलाई जो हकीर पानी की तरह है, फिर इसको नक्सुक से दुरुस्त किया और इसके अंदर अपनी रूह फूंक दी और तुमको कान दिए, आंखें दी और दिल दिए, तुम लोग कम ही शुक्रगुजार होते हो। सामिन इकराम, यहाँ लतीफ अंदाज में, दिल मोह लेने वाले अंदाज में, दिल के और जहनों के गिरहों को खोल देने वाले अंदाज में, इसके अंदर पड़ी हुई वो जंगालूद मतलब जो है कैफियत को दूर करने वाले अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतरीन मिसालों के जरिए से बड़े ठंडे अंदाज में इंसानों के अकलों को अपील करता है कि यहाँ मतलब जो है कहा गया कि रूह फूंकने से पहले इंसान का सारा जिक्र सेगा गायब में क्या किया जाता रहा है, इसकी तखलीक, इसकी नस्ल चलाई गई, इसको नुक्सुक से दुरुस्त किया गया, माँ के पेट के अंदर ये सारे काम हुए, फिर इसके बाद इसमें रूह फूंकी गई। इसीलिए इस वक्त तक वो खिताब लायक न था जब तक कि मतलब जो है उसके नुक्सुक और तमाम मतलब जो है चीजों को दुरुस्त किया जा रहा था। इसके फिर जब रूह फूंक दी गई तो अब इससे फरमाया जा रहा है कि तुमको कान दिए गए हैं, तुमको आंखें दी गई हैं, तुमको दिल दिए गए हैं, इसलिए कि हामिल रूह हो जाने के बाद ही वो इस काबिल हुआ कि इसे मुखातिब किया जाए। सामिन इकराम, कान, आंखों से मुराद वो जराए हैं जिससे इंसान इल्म हासिल करता है, अगरचा हुसूल इल्म के जराए जायका और लाम यानी मतलब जो है जो चखने वाली मतलब जो है मतलब जो है छठी हिस्सा है वो सब मतलब जो है शामिया भी, लेकिन समात और बिनाई तमाम दूसरे हवास भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे अता फरमाए हैं जो बड़े अहम मतलब जो है जराए हैं। इसीलिए कुरान जगह जगह इन्हीं दो को अल्लाह के नुमाया अतियों की हैसियत से पेश करता है कि इसके बाद दिल से मुराद वो जहन है जो हवास के जरिए से हासिल शुदा मालूमात को मुरतब करके इससे नताइज निकालता है। इसीलिए तो अशरफुल मखलूक है और अमल की मुख्तलिफ इम्कानी राहों में से कोई एक राह मुंतखब करना और इस पर चलने का फैसला करता है तो तुम लोग मतलब जो है कम ही शुक्रगुजार होते हो, इसका तस्करा किया गया। इसलिए कि उम्मत मुस्लिमा का ये हाल है कि तमाम इंसानी मतलब जो है वो तमाम नियामतें जो इंसानों को इस बदन की शक्ल में इंसानों को अता की गई हैं, इसके जरिए से वो तमाम मतलब जो है हिस्सासात के साथ इस दुनिया को महसूस करता है, सही गलत का फर्क महसूस करता है, मगर फिर भी उसका यह हाल है कि वो मतलब जो है बिल्कुल इससे आरी और जानवरों की तरह अपने आप को बना लिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि तुम मतलब जो है नाशुक्रे हो गए हो। ये अजीमुल कद्र इंसानी रूह इतने बुलंद पाया और साहब के साथ तो हमने तुमको मतलब जो है अता इसलिए नहीं की गई थी कि तुम दुनिया में जानवरों की तरह रहो। अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने लिए बस वही जिंदगी का नक्शा बना लो जो कोई जानवर मतलब जो है बना सकता है। ये आंखें तुम्हें न चश्मे बसीरत देखने के लिए दी गई थी, न कि अंधे बनकर रहने के लिए। ये कान
تمہیں گوش ہوش سے سننے کے لیے دیے گئے تھے، نہ کہ بہرے بن کر رہنے کے لیے۔ یہ دل تمہیں اس لیے نہیں دیے گئے تھے کہ حقیقت کو سمجھو اور صحیح راہ فکر و عمل اختیار کرو، نہ اس لیے کہ اپنی ساری صلاحیتیں صرف اپنے حیوانیت کی پرورش کے وسائل فراہم کرنے میں صرف کر دو۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ایک مثالیں دے کر یوں ارشاد فرماتا ہے، اور اس سے کچھ اونچے تم اٹھو اور اپنے خالق سے بغاوت کے فلسفے اور پروگرام بنانے لگ گئے ہو۔ یہ بے قیمت نعمت خدا سے پانے کے بعد جب تم دہریت یا شرک اختیار کرتے ہو، جب تم خود خدا یا دوسرے خداؤں کے بندے بنتے ہو، جب تم خواہشات کے غلام بن کر جسم و نفس کی لذتوں میں غرق ہو جاتے ہو، تو گویا اپنے خدا سے کہتے ہو کہ ہم ان نعمتوں کے لائق نہ تھے، ہمیں انسان بنانے کی بجائے تجھے ایک بندر یا ایک بھیڑ یا ایک مچھر یا ایک کوا بنانا ہی ہمارے لیے کافی تھا۔ اسی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العالمین دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے سورہ مومنون آیت نمبر 78 سے 80 تک کی آیات میں اللہ رب العالمین یوں بیان کرتا ہے، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم کو پل سمیٹے جاؤ گے۔ وہی زمین بخشتا ہے، زندگی بخشتا ہے، اور وہی موت دیتا ہے۔ گردش لیل و نہار اسی کے قبضے قدرت میں ہیں۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ کتنا بہترین پیرایا ہے، کتنی بہترین مثال ہے، کتنا بہترین سمجھانے کا انداز ہے کہ ایک نہ سمجھنے والا انسان بھی بخوبی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کیا مطلب بتانا چاہتا ہے، کیا سبق دینا چاہتا ہے، کیا رہنمائی کرنا چاہتا ہے، کس طرف مجھے اور آپ کو آگاہی دینا چاہتا ہے۔ یہ وہ بہترین مثالیں ہیں جو اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ ان آیتوں میں بھی دیکھیں کہ اللہ رب العالمین یہاں شکر گزاری کے مادے کی کم ہونے کی بات اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بد نصیبو، یہ آنکھ، یہ کان، یہ دل، یہ دماغ تم کو کیا اس لیے دیے گئے تھے کہ تم ان سے بس وہ کام لو جو حیوانات لیتے ہیں؟ کیا ان کا صرف یہی مصرف رہ گیا ہے کہ تم جانوروں کی طرح جسم اور نفس کے مطالبات پورا کرنے کے ذرائع ہی تلاش کرتے رہتے ہو اور ہر وقت اپنا معیار زندگی بلند کرنے کی تدبیروں ہی سوچتے رہا کرتے ہو؟ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی ناشکری ہو سکتی ہے کہ تم بنائے تو گئے تھے انسان اور بن گئے تم نرے حیوان، جن آنکھوں سے سب کچھ دیکھا جائے مگر حقیقت کی طرف رہنمائی کرنے والے نشانات ہی نظر نہ آئے، جو آج امت مسلمہ کا حال ہے، جن آنکھوں کو سے سب کچھ سنا جائے مگر ایک سبق خاموش بات ہی نہ سنی جائے، جس دل و دماغ سے سب کچھ سوچا جائے مگر بس یہی نہ سوچا جائے کہ مجھے یہ وجود کیسے ملا ہے، کس لیے ملا ہے اور کیا میری زندگی کی غائیت ہے۔ سامعین کرام، یہ ہمارا حنیف ہے کہ اگر وہ پھر ایک بیل کی بجائے ایک انسان کے ڈھانچے میں ہو، یعنی انسانوں کی کوئی اندر اس وقت چینجنگ اتنا نہیں ہے کہ وہ انسان کی شکل میں دو پیروں کے ساتھ عقل رکھ کر چلنے والا حیوان ہے، اور جانوروں کا یہ حال ہے کہ وہ 4 پیروں کے ساتھ وہ عقل سے آری اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان جو گمراہ راستوں پر چلنے والے یہ لوگ ہیں، ان حیوانوں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین آیتوں کے ذریعے سے انسانوں کو بتا کر ان کے جذبات کو ابھارتا ہے، اس کے اندر انقلاب پیدا کرتا ہے اور ان کے ذہنوں کو ابھار رہا ہے کہ سوچو تو صحیح تم کیا ہو، تمہارا مقام کیا ہے، تمہاری منزلیت کیا ہے اور تمہیں کس مقام تک جانا ہے، اور تمہاری زندگیوں کا یہ حال ہے کہ تمہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تم جانوروں کی طرح زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے ہو۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین اسی میں جو مزید آیت کو جو کوٹیشن کے ساتھ بتایا گیا، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم کو سمیٹے جاؤ گے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، گردش لیل النہار اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ مثالیں دے کر اللہ رب العالمین علم کے ذرائع، حواس اور قوت فکر اور اس کے مصرف صحیح سے انسان کی غفلت میں متنبہ کرنے کے بعد اب ان نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جس کا مشاہدہ اگر کھلی آنکھوں سے کیا
کیا جائے کہ ہم سب مطلب کھلی آنکھوں سے دیکھیں کہ جن کی نشاندہی سے اگر صحیح طور پر استدلال کیا جائے یا کھلے کانوں سے کسی معقول استدلال کو سنا جائے تو آدمی حق تک پہنچ ہی سکتا ہے، یہ بھی معلوم کر سکتا ہے کہ کارخانہ ہستی بے خدا ہے یا بہت سے خداؤں کا ساختہ پر ساختہ نہیں ہے بلکہ توحید کے اساس پر قائم ہے، اور یہ بھی جان سکتا ہے کہ یہ بے مقصد نہیں ہے، نرا کھیل اور محض ایک بے معنی تسلم ہی نہیں ہے، بلکہ یہ معنی بر حکمت نظام ہے جس میں انسان جیسی ذی اختیار مخلوق کا غیر جواب دہ ہونا اور بس یوں ہی مر کر مٹھی ہو جانا ممکن نہیں ہے۔ یہی بات کو سورہ ابراہیم کا مطالعہ کر کے دیکھیں، وہاں ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے وہ مشاہدہ کرایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا، کہا یہ ڈوب جاتا ہے، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، سورج کو دیکھا وہ ڈوب گیا تو کہا کہ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، نباتات و جمادات کو دیکھا کہ یہ سب فنا ہونے والے ہیں تو یہ میرے خدا نہیں ہو سکتے، پھر انہوں نے ڈھونڈ کر نکالا کہ اللہ رب العالمین کیسے ہوتا ہے۔ اس مشاہدے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین انسانوں کو رہنمائی کرتا ہے اور انہیں بتلاتا ہے کہ صحیح راستے پر آگے بڑھنے والی کیفیت کیا ہوتی ہے اور اس کے لیے کیسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اسی بات کو مزید آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو سورہ احقاف آیت نمبر 26 میں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے، ان کو ہم نے وہ کچھ دیا جو تم لوگوں کو نہیں دیا ہے، ان کو ہم نے کان اور آنکھیں اور دل سب کچھ دیے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیر میں وہ آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ سامعین کرام، بات کے کنکلوژن میں آتے ہوئے اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ ہم جانوروں کو تو بالکل ہم نے اسے الگ ہی کر دیا، ان کو تو ہم نے عقل نہیں دی، کان نہیں دیے، آنکھ نہیں دیے، کان نہیں دیے اور نہ ہی ان کو دل دیے اور نہ ہی ان کو دماغ عطا فرمائے، پھر بھی مطلب جو ہے ان کی زندگیوں کا یہ حال ہے کہ تمہیں بالکل اس سے مستثنا رکھتے ہوئے تمام مطلب جو ہے الگ سے تمہاری مطلب جو ہے تمام نقص سے تمہیں آراستہ کرتے ہوئے تمہیں تمام مطلب جو ہے علم ذرائع عطا فرمائے، مگر تمہاری زندگی کا یہ حال ہے کہ تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو اور اسی چیز کے پھیرے میں آ گئے ہو جس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ویسا ہی رویہ تم نے اختیار کر لیا ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے اللہ رب العالمین اللہ کے آیات کا انکار کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس مختصر فرقے کے اندر ایک اہم حقیقت بیان کر دی ہے، خدا کی آیات ہی وہ چیزیں ہیں جو اللہ کو جو انسان کو حقیقت کا صحیح فہم اور ادراک بخشتی ہیں۔ یہ فہم اور ادراک انسان کو حاصل ہو تو وہ آنکھوں سے ٹھیک دیکھتا ہے، کانوں سے ٹھیک سنتا ہے، دل و دماغ سے ٹھیک سوچتا ہے اور صحیح فیصلے کرتا ہے۔ سامعین کرام، لیکن جب وہ آیات الہی کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اسے نگاہ حق شناخت نصیب نہیں ہوتی، کان رکھتے ہوئے بھی وہ ہر کلمہ نصیحت کے لیے وہ بہرا ہو جاتا ہے اور دل دماغ کی جو نصیحتیں خدا نے اسے دے دی ہیں اس سے وہ الٹا سوچتا ہے اور ایک سے ایک غلط مطلب جو ہے نتیجہ اخذ کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ساری قوتیں خود اس کی اپنی تباہی میں صرف ہونے لگ جاتی ہیں۔ جو موجودہ ماحول میں خود اپنا مطلب جو ہے تجزیہ کر کے دیکھا جائے تو ہم خود اپنے پیروں پر کلاڑی مار رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین پیغمبروں کو بھیجا، اس نے اللہ نے ہمارے لیے رہنمائی کے لیے کتابوں اور صحفوں کو اس دنیا میں نزول کیا اور اس کے بعد رسولوں کو اپنے عملی پیرائے میں اس کو مطلب جو ہے نفاذ کس طرح کیا جائے اس کو عملی نمونوں کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد صحابہ و تابعین کے ذریعے سے اس مطلب جو ہے اسلام کو دور تک پھیلاتا ہوا چلا گیا، مگر اس کے باوجود بھی حقائق دنیا، حقائق کائنات سامنے ہونے کے باوجود وہ مطلب جو ہے اس آنکھوں سے، اس کانوں سے اور اس مطلب جو ہے عقل سے اگر انسان کام نہ لے لے تو سب سے زیادہ مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے بے وقوف ہے یا نہیں ہے، سب سے زیادہ ناشکرا ہے یا نہیں ہے، سب سے زیادہ وہ نقصان میں پڑنے والا ہے یا نہیں ہے، یہ سوالات ہیں جو ان مثالوں کے ذریعے سے سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین وہاں اندھا، بینا اور صالح اور بد کردار مطلب شخص کے سلسلے میں سورہ مومن آیت نمبر 57 میں یوں بیان کرتا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائیں، ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ٹھہرے، مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو۔ سامعین کرام، کتنا بہترین انداز ہے، کتنا بہترین پیرایا ہے جو انسانوں کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں
कितना मतलब जो है अच्छे अंदाज में नरमाहट के साथ समझाया गया है। इस मतलब जो है बातों को समझ इंसान फिर भी नहीं समझ पाता तो सबसे बड़ी मतलब जो है उसकी कमजोरी क्या हो सकती है कि वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, और फिर वो एक वक्त ऐसा आएगा जहां वो पछताता ही पछताता रहेगा। सामने इकराम, यहाँ जो आयत पेश की गई है सूरह मोमिन आयत नंबर 58 में, यहाँ आखिरत की दलील के साथ इसका होना गैर मुमकिन नहीं है लोग ये तसव्वुर करते हैं। इसी वजह से वो इस तरह की मतलब जो है हरकत में पड़े हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि अकल इंसाफ का तकाजा ये है और वो हो कि इसका होना नहीं है, क्योंकि क़यामत का एक मतलब जो है मैदान हशर बर्पा होगा जहां इंसानों के मतलब जो है साथ इंसाफ किया जाएगा, और जो अच्छे मतलब जो है अमल किए हैं वो अल्लाह के रजा के खातिर उनके लिए इनाम अकराम मतलब जो है रखा गया है। रह गए वो लोग जो अंधों की तरह जीते हैं और बुरे अखलाक और अमाल से खुदा की सरजमीन को फसाद से भर देते हैं, वो अपनी रविश का कोई अंजाम बुरा न देखें, ये कैसे हो सकता है? उन्हें मतलब जो है इस दुनिया में आंखें खोल कर चलना होगा, अगर नहीं है तो मैदान हशर में इनका अंजाम बद मतलब जो है उठकर आएगा और उन्हें दहकती हुई आग का ईंधन बनाकर वहां खड़ा कर दिया जाएगा। सामने कराम, इसके बाद मजीद अगर आगे बढ़कर देखें तो वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको सूरह मोमिन आयत नंबर सूरह सजदा आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला फरमाता है कि भला कहीं ये हो सकता है कि जो शख्स मोमिन हो और वो इस शख्स की तरह हो जाए जो फासिक हो, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं कुरान मजीद में मिसालों के जरिए से समझा देता हूं, मगर जो लोग इसको मान जाते हैं जिनको मोमिन कहा जाता है और जो लोग इनकार करते हैं वो मतलब जो है मुनकरीन है, तो ऐसे दोनों लोग कभी बराबर हो सकते हैं क्या? यहाँ मोमिन फासिक की दो मुतकाबिल इस्तिलाहें इस्तेमाल की गई हैं। मोमिन से मुराद वो शख्स है जो अल्लाह ताला को अपना रब और माबूद वाहिद मानकर इस कानून की इताअत इख्तियार कर ले और जो अल्लाह ने अपने पैगंबरों के जरिए से भेजा है। इसके बरअक्स फासिक वो है जो फिस्क और फुजूर में मतलब मुब्तला हो गया है, जो बगावत करता है, खुद मुख्तारी और इताअत गैरुल्लाह का रवैया इख्तियार करता है। उसकी तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते, ना दुनिया में इनका तर्ज अमल यकसा हो सकता है, ना आखिरत में ही वो मतलब जो है इस तरह से अमल पर मतलब जो है वो यकसा हो सकते हैं। इनकी मिसालों के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन बताता है। इसके बाद मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको मतलब जो है ये तमाम आयात करीमा बयान करने के साथ मुझे और आपको जो नसीहतें इन मिसालों के ज़रिए से देता है वो ये है कि मुझे और आपको सोचना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए, हमें अमली मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद एक मंशूर है। ये कुरान मजीद मुझे और आपको राह को सीधी करने वाली और सीधी राह दिखाने वाली, सिरात मुस्तकीम पर गामजन करने वाली किताब है। इस कुरान मजीद को अगर सिर्फ नाज़िर के तक रखा जाए तो ये कोई फायदा नहीं होगा। इस कुरान मजीद को अगर ताकों में सजा कर मतलब जो है ऊपर उठा कर रखा जाए, ये मेरे और आपके लिए कुछ काम नहीं आएगी। ये कुरान मजीद को मतलब जो है उस पे ऊपर मतलब रखकर नीचे से दुल्हन को गुजार दिया जाए, ये मेरे और आपके लिए कुछ काम नहीं आएगी। अगर इस कुरान मजीद को कस्में उठाने के लिए ये मतलब जो है इस्तेमाल की जाए, ये मेरे लिए कोई फायदा मंद नहीं होगी। ये फायदा उसी वक्त देती है जब इस पर अमली तौर पर मतलब गौर फिक्र किया जाए। ये मिसालें इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा और बार बार पढ़ते रहे होंगे, क्योंकि अमलिया उम्रों के हिसाब से हमने कई रमजान पीछे मतलब जो है छोड़ आए हैं। क्या इन रमजानों में इस कुरान मजीद की इन मिसालों पर हमने गौर किया था? क्या हम बैठकर इस पर गुफ्तगू की थी? क्या इन मिसालों के जरिए से अपनी आंखों के पर्दों को खोलने की कोशिश की थी? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेहतरीन मतलब जो है तर्ज इमसाल को समझने की कोशिश की थी? अगर नहीं थी तो ये मौका आज हमें मिला है। इन मिसालों के जरिए से अपनी जिंदगियों में बदलाव पैदा करने की जरूरत होगी। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि शऊरी एहसासात हमारे अंदर पैदा हो जाएं। जरूरत इस बात की है कि हम मतलब जो है सोचने समझने के लिए अकल का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अपने अतराफ में देखें क्या कुछ गलत हो रहा है, क्या कुछ सही हो रहा है। सिर्फ लोगों के बताए हुए अंदाज के मुताबिक अंधाधुन मतलब जो है जानवरों की तरह सर झुकाकर गुजरने की जरूरत नहीं है। हम अक्लमंद हैं, हम मतलब जो है बाशऊर हैं। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अशरफुल मखलूक बनाया है। इस मतलब को इस नेमत का इस्तेमाल करते हुए मुझे और आपको सही
صحیح معنوں میں صحیح رخ کے ساتھ سوچنے سمجھنے اور تفکر کرنے والا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. آج امت مسلمہ کے اندر تفکر کم ہو گیا ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے. اسی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں. مثلا مطلب جو ہے اسی واٹس ایپ کو لے کر دیکھیں, اس واٹس ایپ میں بغیر کسی سوچے سمجھے کوئی مطلب جو ہے ایسا میسج ڈال دیا جاتا ہے, نہ سوچتے ہیں نہ اس پر غور کرتے ہیں, صحیح غلط کی نہ پہچان کرتے ہیں, بلکہ اسے فارورڈنگ کر دینا, اسے بات کو پھیلا دینا, چاہے وہ ہماری باطل قوتیں ہی اس کو وہ ذرائع استعمال کرتے ہوئے انسانوں کو امت مسلمہ کو بیوقوف بنانا چاہ رہی ہو, ہم مطلب جو ہے سوچتے نہیں ہیں. اسی وجہ سے جدید چیلنجز نے امت مسلمہ کو گھیر رکھا ہے, اسی وجہ سے ہر طرف سے یہ الغار ہو رہی ہے, اسی وجہ سے ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے, ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے, ہمارے اندر اصلاح کا جذبہ موجود نہیں ہے, ہمارے اندر نیکی کی طرف بڑھنے والے وہ رجحانات موجود نہیں ہے. سامعین اکرام, یہ مثالیں مجھے اور آپ کو ابھارتی ہیں, جذبات کو ابھارتی ہیں, اس میں انقلاب پیدا کرتی ہیں, اس میں ٹھاٹے مارتا ہوا علم مطلب جو ہے معجزن ہے. اس کو سمجھنے, اس پر غور و فکر کرنے, اس پر تدبر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو سمجھنے والی عقل عطا فرمائے, شعور عطا فرمائے, احساس عطا فرمائے, اور عقل کا صحیح استعمال کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.